1 Corinthians 11:26. It पहला says, कुरिन्ती 1 11 Corinthians 11:26. का 26वां वचन, It says, "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। So Jesus had said also when he was having the Lord's table with his disciples, he was telling, "Do this in remembrance of me." और जब प्रभु यीशु भी इस भोज में अपने शिष्यों के साथ भाग ले रहे थे तब उन्होंने कहा, ये मेरे याद में करो। And here the Apostle Paul is saying, "For as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." तो ऐसे ही प्रेरित पौलुस भी कह रहे हैं कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। So God made a unique plan for the restoration of fellowship with man, which was lost due to the sin of Adam. मनुष्य के साथ जो संगति और संबंध जो पाप के कारण टूट गया था उसे पुनर्रचना करने के लिए परमेश्वर ने ये अनोखा योजना बनाया। And this plan was made before the foundation of the world. और ये जो योजना है वो प्रभु परमेश्वर ने इस दुनिया के रचने से पहले ही बनाया था। Jesus, the Son of God, came to this world as a man just like us and lived a sinless life. यीशु एक जो परमेश्वर का पुत्र है वो इस दुनिया में आया एक मनुष्य बनकर और उन्होंने एक पाप रहित जीवन बिताया। Jesus died as a sacrifice for our sins. और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुए। God made Jesus, who knew no sin, to be sin on our behalf, that we might be forgiven and made righteous before God. और यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए, जो पाप से अज्ञात था वो पाप हमारे लिए बन गए। This verse is found in 2 Corinthians 5:21, a wonderful verse, that God made him who knew no sin to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God. ये वचन हम दूसरा कुरिन्ती 5 का 21 में पढ़ते हैं, जहाँ कहा गया है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। And we were redeemed not with perishable things like gold and silver, but with the precious blood as of a lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ. This we find in 1 Peter chapter 1 verse 19. और पहला पत्रस 1 का 19 में लिखा है, 18 और 19 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। So when we proclaim the Lord's death by partaking of the Lord's table, we can remember 3 blessings that his death and resurrection has done for us. और जब हम प्रभु भोज का भाग लेते हैं तो हम उनकी जो मृत्यु है उसकी हम घोषणा करते हैं और इसके द्वारा हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि प्रभु ने हमें 3 प्रकार के ऐसे अनुग्रह दिए हैं उनके क्रूस पर मरने और जी उठने के कारण। So we can really value what Jesus has done by the blessings that he has given us through his death and resurrection. और हम इसे बहुमूल्य जान सकते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। First is the forgiveness of our sins and our justification. पहली बात है कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए हैं और हमें धार्मिक ठहराया है। The guilt and consequences of our sin is taken away by the sacrifice of Jesus. जो दोष और जो परिणाम है
पाप के कारण जो हमें भुगतना पड़ता है वो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा दूर किया है. This is not a small thing. This is really a miracle. It says in Hebrews chapter 9:14, ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही अनोखी बात है. Hebrews 9:14 says, "How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?" इब्रानियों 9 का 14 वचन, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष छुड़ाया, तुम्हारी विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो. No other sacrifice, the sacrifice of lamb and bulls and goats, or any other sacrifice in any religion, can give us a perfect conscience. ऐसा और कोई बलिदान नहीं है, जैसे अन्य जो धर्म हैं उनमें मेमना या जो बकरी है इनके चढ़ाने से जो हमारा जो विवेक है वो साफ नहीं होता है. It's only the blood of Jesus which was without blemish and spotless. That alone can give us a perfect, cleanse our conscience from dead works and give us a standing before God. सिर्फ जो यीशु मसीह का लहू जो एक निष्कलंक और बिना निर्दोष मेमना है, उसके बलिदान किए जाने से हमें एकदम साफ विवेक मिल सकता है. So that is the first one, the forgiveness of our sins and our justification. जो पहला अनुग्रह हमें मिला है वो है पापों का क्षमा और धार्मिक ठहराए जाना. The second is that Jesus Christ came to deliver us from our sins. और दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह हम अपने पापों से मुक्त करने के लिए आए हैं. So 1 John 3:8 says, "The Son of God appeared for this purpose, that he might destroy the works of the devil." पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 8वां वचन, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे. Sin in any form takes away the joy and peace of our life. पाप कोई भी रूप में हो, वो हमारा जो आनंद है और हमारे दिल में जो शांति है उसे निकाल देता है. What is sin? The Bible says sin is transgression of the law. पाप क्या है? वो जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन करना है. But for us, we can say that sin is anything un-Christ-like. लेकिन हमारे लिए हम ये कह सकते हैं जो भी यीशु मसीह के स्वभाव से अलग है वो पाप है. So think, in our mind, we don't think well of somebody. We have some cold thoughts or bitter thoughts. We are not breaking any transgression, any law as such, but it is un-Christ-like. हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम अगर किसी के बारे में बुराई सोच रहे हैं अपने दिल में, तो हम कोई भी जो व्यवस्था या नियम है उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं. Yeah. So, but Jesus is now the high priest who gives grace to overcome every sin in our life. लेकिन यीशु मसीह जो है वो हमारे महायाजक हैं, वो हमें हर पाप के ऊपर जयवंत बनाते हैं. That is the blessing of what Jesus has come in this world, and he died and he rose again, so that we can live a life overcoming sin. तो ये अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हमें उपलब्ध हुआ है कि हम हर पाप के ऊपर जयवंत हो सकते हैं. If we read Hebrews 4:15 and 16, it says, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all points as we are, yet without sin. Let us therefore draw near
with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. इब्रानियों 4 का 15 और 16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकलता है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करती है। So now the third blessing is that we can have a continuous fellowship with the living God. और तीसरा जो अनुग्रह हमें मिला है वो है कि हमें निरंतर परमेश्वर के साथ संगति मिल सकती है, And we can walk with Him. और हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। The Bible says, walk in the Spirit, live in the Spirit. वचन कहता है कि हमें आत्मा में चलना चाहिए और आत्मा की सहायता से जीना चाहिए। So we can remember these three blessings. There are so many more, but I've just taken about three. That is first the forgiveness of our sins and justification. तो हम इन तीनों अनुग्रहों के बारे में हम सोच सकते हैं कि जो पहला है कि हमें पापों से क्षमा मिला है और हम धार्मिक ठहराए गए हैं। The second one is that Jesus can deliver us from any sin. और दूसरा अनुग्रह यह है कि यीशु मसीह हमें हर पाप पर जयवंत बनाता है, Because He has come to destroy the works of the devil in our life. क्योंकि वह जो शैतान के कार्य हैं उसको नाश करने के लिए आए हैं। And now the third one is that we can have the continuous fellowship with the Lord, which Adam lost because of his disobedience. और जो संगति अदाम ने पाप के कारण खो दिया था, वो संगति हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ रख सकते हैं। The Lord's table is a blessing. जो प्रभु भोज है वो एक अनुग्रह है। The bread signifies the body of Christ. जो यीशु मसीह का शरीर है उसे जो रोटी है वो दर्शाता है। When we break bread, it signifies a sharing in the body of Christ, which is the church. जब हम रोटी तोड़ते हैं तो ये संकेत देता है कि हम यीशु मसीह के शरीर जो कलीसिया है उसके भाग हैं। So brothers and sisters, when we break bread, it shows communion and fellowship between all of us. जब हम रोटी में भाग लेते हैं तो ये दिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। Then the cup of blessing is a sharing in the blood of Christ. और जो कटोरा है वह अनुग्रह है और हम यीशु मसीह के लहू में भागी हैं। The blood of the new covenant, where God writes His laws in our minds and hearts. और ये उस नया वाचा को दर्शाता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे दिलों और मनों में अपना व्यवस्था लिखता है। He is our God and we are His people. हम परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और हम उनके लोग हैं। And He will remember our iniquities no more. और वो हमारे गुनाहों का स्मरण नहीं रखेगा। So, brothers and sisters, the Bible says the Lord's table is a blessing. भाइयों बहनों, वचन कहता है कि प्रभु भोज जो है वो एक अनुग्रह है। I think it says, Jesus said in John that if you eat my flesh and drink my blood, you have eternal life. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे शरीर और लहू में भाग लोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। So we can, as we partake, whatever our need is, that needs can be met, whatever it is, physical, spiritual or anything. तो जब हम इसमें भाग लेते हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरा हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक हो। So let us trust in that way and partake. हम इस पर भरोसा रखें और इस प्रकार हम इसमें भाग लें। Now we have to partake of the Lord's table worthily. हमें योग्यता के साथ इस प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए।
It says in 1 Corinthians 5:8 that let us therefore celebrate the feast not with old leaven, that means some old leaven of sin which is still lingering, uh, hidden sin, and, nor with the leaven of malice, some hatred towards people, some cold attitude, some and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. इसीलिए पहला कुरिन्थियों 5 का 8वां वचन में ऐसे लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुरानी खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से. So therefore, let us examine ourselves and then eat the bread and drink of the cup. इसीलिए हम अपने आप को परख कर देखें और सीधाई और सच्चाई से इसमें भाग लें. That's what is written in 1 Corinthians 11:28. और ये ही पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और उसका 28 वचन में लिखा गया है. So let's spend about 1 or 2 minutes just in quietness before the Lord. हम 1 या 2 मिनट प्रभु के सामने हम बिताएंगे And examine ourselves and commit ourselves to the Lord. और हम अपने आप को परख कर देखेंगे और प्रभु को सौंपेंगे. Yeah. And then Brother George Wengel will continue from and so then instruct us about how we should do. और इसके बाद ब्रदर जॉर्ज वेंगल हमें बताएंगे कि हम कैसे इसमें भाग लेंगे. Yeah, as we know, this is a family occasion for the body of Christ. और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मसीह के शरीर के लिए, इस कलीसिया के लिए यह एक पारिवारिक उत्सव है. That's why our videos are on and we can see each other. This is not a very formal occasion. This is a celebration of our fellowship. और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर आज हम सभी के वीडियो ऑन है, चालू है और हम सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा अवसर है जहाँ पर हम परिवार के रूप में इकट्ठा होकर एक उत्सव को मनाने आए हैं. As we heard, Christ has purchased this fellowship for us by paying a और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने भारी मूल्य देकर, कीमत चुकाकर हमारे लिए इस संगति को खरीदा है. So that we don't have to fight with each other, we don't have to be envious of each other, we don't have to be angry with each other. We can love each other and have tremendous fellowship and the blessings of the fellowship in our midst. तो हमें आपस में एक दूसरे से किसी भी बात को लेकर विवाद करने, लड़ने, झगड़ने की जरूरत नहीं या शिकायतें करने की जरूरत नहीं, परंतु हम एक दूसरे से आपस में प्यार कर सकते हैं और हम इसमें आनंद मना सकते हैं और इसे मना सकते हैं. So that the heaven will come down in our midst. ताकि स्वर्ग जो है वो हमारे बीच में उतर कर आए. And we know that this is the new covenant. This is the remembrance of the new covenant. और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह नई वाचा की स्मरण में, याद में हम यह करते हैं. So what Christ did because of new covenant we heard, but we formally remember that there is a covenant between we and Jesus. और मसीह यीशु ने नई वाचा के दौरान जो कुछ हमारे लिए कहा, हम उसे स्मरण करते हैं, लेकिन इस नई वाचा को हम इसी के द्वारा स्मरण रखते हैं. The covenant has got two sides. Jesus is faithful to his side of the covenant, but he does not. But we should be faithful to our side of the covenant. और यीशु मसीह ने इस वाचा के अपनी ओर से वे विश्वास योग्य बने रहे हैं, और अब हमें भी अपनी ओर से इस नई वाचा के लिए विश्वास योग्य बने रहना है. So when we take this bread and wine, we are declaring our covenant relation with Christ. और जब हम इस मेज में शामिल होकर यह रोटी लेते हैं, तो हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम इस वाचा में शामिल हैं. So that's why it says in 1 Corinthians 11, we are serious when we do it. We should not take it lightly. और हम वचन में पढ़ते हैं कि जब कभी हम इसमें शामिल होते हैं तो हमें इसे बहुत ही गंभीरता से लेना है, इसे हल्के में नहीं लेना है. So when you go and sign an agreement, will you take it lightly? You will read the agreement, understand it, and you will be very serious when you sign the agreement.
जब कोई भी आप एग्रीमेंट दस्तावेज को साइन करने के लिए जाएंगे तो आप ऐसे ही हल्के में लेकर उस पर साइन करेंगे नहीं, आप उससे बहुत ध्यान से गौर से पढ़ेंगे, सारी बातों को जानेंगे और उसके बाद ही आप उस पर साइन करेंगे। If you do that, there will be consequences. If you sign an agreement without taking it seriously, there will be consequences. और यदि आप उस एग्रीमेंट को बिना गंभीरता से लिए हल्के में लेकर आप यदि उस पर साइन करेंगे तो उसका बहुत ही आपको बुरा सामना करना पड़ सकता है। That's why it says in 1 Corinthians 11:29, it says, those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment for themselves. That is why many among you are weak and sick. और जैसा हम पहला कुरिन्थी 11 के 29 और 30 में पढ़ते हैं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। So let us be very serious that to be our part of the covenant, to be faithful to Jesus Christ. भाई हम बहुत ही गंभीरता से इसमें शामिल हों और हम अपनी ओर से यीशु मसीह के साथ जो ये हमारी नई वाचा है, हम अपनी ओर से उसमें विश्वास योग्य रहें। 27 verse says, so then whoever eats and bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. और यहाँ पर हम उसके 27 वचन में पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। So we can sin against a person and also we can sin against the body of Christ. तो आप एक व्यक्ति के विरोध में भी पाप करेंगे और आप मसीह की देह के विरोध में भी पाप करेंगे। So when Saul was persecuting the church, he was not persecuting one or two Christians. He was persecuting the church. He was trying to destroy the church. और जब हम देखते हैं पौलुस जब वो कलीसिया को सता रहा था तो वो एक या दो मसीही को विश्वासी को नहीं सता रहा था, परंतु वह पूरे उस मंडली उस पूरी कलीसिया को सता रहा था। वो That's why immediately Jesus interfered and said, Paul, you are persecuting me. He didn't say that you are persecuting believers, you are persecuting me. It is not good for you to kick against thorns. और तब यीशु मसीह वहां पर दखल अंदाजी करके उसके सामने आता है और उससे कहते हैं कि तुम मुझे बहुत ही सता रहे हो, मुझे दुख दे रहे हो। और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरे विश्वासी लोगों को दुख दे रहे हो, परंतु कहा तुम मुझे सता रहे हो। So when you should always remember, when we are dealing with the body of Christ, we are dealing with Jesus Christ. That's तो हमें इस बात को इतनी गंभीरता से स्मरण रखना है कि जब हम यीशु मसीह के शरीर के साथ में हम कुछ व्यवहार कर रहे हैं तो हम वो यीशु मसीह के साथ में करते हैं। So that's why when we come together as a body, when we come together as a body and pray for someone, when we come together as a body or do something, it is just like Jesus doing it. That's serious. We should take the body of Christ that seriously. तो हमें मसीह की जो ये कलीसिया है, जो मसीह की देह, उसे उतनी गंभीरता से लेना है, क्योंकि जब हम एक शरीर के रूप में इकट्ठा होकर संगति में आते हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं या कोई बात हम करते हैं एक इकट्ठा होकर देह के रूप में, तो हम वह यीशु मसीह के लिए उसके साथ में करते हैं। So this is for those who are taken baptism. That means you are born again, you are taken baptism, and you have a desire to be in fellowship with Jesus Christ and the body of Christ. तो यह उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, जिन्होंने नया जन्म पाया है, बपतिस्मा लिया है और यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहते हैं और उसकी देह उसके कलीसिया का हिस्सा है।